what is buoyancy and what is metacentric height. So फर्स्ट आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई भी बॉडी आपकी अगर हम पानी में प्लेस करते हैं तो या तो वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है, या फिर वो फ्लोट करती है. ये दो केसेस हम देखने होंगे, या फिर वो पार्शियली आपकी फ्लोट करती है. सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ buoyancy which we see whenever a body is in the water. या तो वो आपकी फ्लोट करेगी या पार्शली फ्लोट करेगी या फिर वो सिंक डाउन कर जाएगी, डूब जाएगी. सो इन केसेस में आपका एक फोर्स लगता है जो कि उसको बैलेंस करके रखता है बाय इट्स ओन वेट. सो दी वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे कि बॉयसी कैसे डेवलप होती है, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. So whenever a body is placed over a liquid, either it sink down or a float on a liquid. So two types of forces are involved. The first is gravitational force and second is upthrust of a liquid. आपके लिक्विड के द्वारा एक अपवर्ड आपका फोर्स लगता है. That upward force actually is known as buoyancy force. So gravitational force it is developed when a body is placed over the water. तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका सेल्फ वेट की वजह से एक फोर्स लगता है. उसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका दूसरा फोर्स लगता है जो कि है आपका अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स ऑफ अ लिक्विड. If gravitational force is more than upward thrust, the body will sink. आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो आपकी बॉडी सिंक कर जाएगी. लेकिन अगर आपका अपवर्ड फोर्स बैलेंस रहा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वो आपकी बॉडी फ्लोट करती रहेगी ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. And in sometimes whenever a body is immersed fully or partially in a fluid, it is buoyed by the force equal to the weight of fluid displaced by the body. यानी कि आपका जब भी कोई बॉडी पानी के ऊपर सिंक करता है, फ्लोट करता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो स्पेस आपकी बॉडी ने पानी पर लिया है उतना अमाउंट ऑफ वाटर आपका बाहर निकल जाता है. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू दी volume of body which is placed over the water. Similarly, a body in a fluid, whenever floating or submerged, is buoyed by a force equal to अंकल आप धीरे बोलना थोड़ा. A body in a fluid, whenever floating or a submerged, is buoyed by a force equal to the weight of fluid displaced. The tendency of fluid to upward a submerged body because of upward thrust of fluid is known as force of buoyancy or simple buoyancy. जब भी आपकी कोई बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करती है सो उसका फ्लोट करने का रीजन होता है buoyant फोर्स. आपने कई बार अगर आप कभी पूल में जाते हैं या कभी किसी रिवर पर फ्लोट स्विम करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप भी कोई एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. दैट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज buoyant फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी. एंड अगर आपका कोई भी बॉडी आपकी पानी में जितना अमाउंट सिंक करती है, जितना वॉल्यूम उसने पानी के अंदर कवर किया होता है, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द टैंक. The buoyant force acts vertically upward through the centroid of displaced volume, and it can be mathematically by the Archimedes principle as followed. Fd is equals to gamma TVA. Here Fd is the buoyant force,
Gamma T is the specific weight of a fluid and volume is the displaced volume of a fluid. Let us discuss a numerical. A wooden block of 4 meter cross 1 meter cross 0.5 meter in size. There is a wooden block having the size of 4 meter cross 1 meter 0.5 meter and having a specific gravity of 0.75 is. Now it is flowing on a water. Find the weight of concrete of specific gravity 24K kilonewton per meter cube. Kilonewton per meter cube that may be placed on a block, which will immerse the wooden block completely. So we need to calculate how much weight of concrete we required so that that wooden block is completely immersed in the water surface. So let us assume the weight of wooden concrete block is W. Now the volume of wooden block is 4 cross 1 cross 0.5, which is 2 meter cube, and its weight is 9.81 into this dimension, which is 14.72 kilonewton. Now total weight of block plus concrete is 14.72 plus W. So यहाँ पे हमने assume किया कि आपका concrete का weight है W और आपका जो wooden block है, wooden block का कितना weight है, which we calculate to the density cross the volume. तो हमारे पास weight total weight आ गया जो कि पानी के ऊपर आपका float कर रहा है. अब हमें उस कंडीशन में कंक्रीट का वेट निकालना है जब आपका वुडन ब्लॉक फुल्ली पानी में डिप हो जाए. सो अगर आपका पूरा का पूरा ब्लॉक पानी में डिप हो जाएगा यानी आपका वाटर भी उतना ही डिस्प्लेस होगा. सो वी नो व्हेन द ब्लॉक इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज 2 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक. कि जितना आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आपका बाहर निकल जाएगा. सो यहाँ पे हमने ये चीज तो पता लगा ली कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा बाहर निकला विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर क्यूब. सो अपवर्ड थ्रस्ट आपका जो बॉयंस फोर्स लगेगा तो अपवर्ड थ्रस्ट जो होगा आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. वो अपवर्ड थ्रस्ट कौन अप्लाई कर रहा है? वाटर. सो वी हैव द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज 2 मीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 9.81. सो 9.81 into 2 which is 19.2 kilonewton is the weight of buoyant force which we applied in a vertical direction. So vertical direction में जब आपका wooden block completely sink down कर जाएगा तो इतना force 19.62 kilonewton आपका vertical direction में apply होगा. Then आपका weight of concrete कितना होगा? In this case आपका weight of concrete So आपका weight of concrete is 19.62 kilonewton minus 14.72. आपका net आपका आंसर आ जाएगा. So in this way we can calculate how much amount of buoyant force we can calculate. अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इसका practically application क्या है. So कोई भी अगर आप ऐसा बोट और शिप आप डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके वॉल्यूम के हिसाब से ये कैलकुलेट करना होता है कि क्या वो फ्लोट करेगा और कितना पार्शियली पानी के अंदर सिंक करेगा, कितना उस पर buoyant force डेवलप होगा. So this is all about the buoyant force. Now our next term is meta center. What is meta center? So sometimes you can see when a body is floating on a surface, it will get tilt in a little bit amount. So and after that it will come back its original position and it will start oscillating
oscillating from a particular point. That point is known as metacenter. So whenever a body floating in a liquid is given a small angular displacement, it start oscillating about some point. This point about which a body start oscillating, this metacenter, this is called metacenter. आपका जिस point से वो body oscillate करती है, आपने कई बार देखा होगा कि जो लार्ज शिप होती हैं वो भी जब पानी पे फ्लोट करती है तो वो ऑक्सीलेट करती हुई जाती है. सो दैट ऑक्सीलेशन occurs at which point, that point is known as metacenter. So also, as you can see in the diagram, there is a body which is floating on a surface applying a buoyant force Fb and W in a downward direction. So when it will get tilt, the weight of whole body is shifted in another axis, as you can see in the next diagram. Now this weight of body is trying to come back its original position. आपका upward force तो उसी एक्सिस पे लग रहा है, लेकिन जब वो टिल्ट हुई तो आपका जो वेट है वो भी दूसरी एक्सिस पे शिफ्ट हो गया और एक रीस्टोरिंग मोमेंट जनरेट होता है जो कि उसको वापस अपने पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है. Now, what is metacentric height? Metacentric height is the height and it is the distance between the center of gravity of a floating body and the metacenter. So, हर एक शिप के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है मेटासेंट्रिक हाइट की. जितनी ज्यादा आपकी मेटासेंट्रिक हाइट होगी, द बॉडी विल स्टेबल ऑन अ सरफेस. सो मर्चेंट शिप के लिए आपकी 1 मीटर अप टू हम मेटासेंट्रिक हाइट रखते हैं, सेलिंग शिप के लिए 1.5 मीटर रखते हैं, बैटल शिप के लिए 2 मीटर एंड रिवर क्राफ्ट के लिए अप टू 3.5 मीटर आपकी मेटासेंट्रिक हाइट हम रख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मेटासेंट्रिक हाइट. GM इज इक्वल्स टू BM प्लस माइनस BG, जहाँ पे GM आपका है मेटासेंट्रिक हाइट, G आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, M आपका यहाँ पे मेटा सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटेड द मेटासेंट्रिक हाइट GM and BM is the distance between the buoyancy and metacentric height and BG is the buoyancy and gravity distance. So when we use plus sign, when G is lower than B, and when we use negative if G is higher than B. So in this way we can calculate our metacentric height, buoyancy. Now we discuss some quiz session also. So our first question is a fluid which obey the Newton's law of viscosity is termed as real fluid, ideal fluid, Newtonian fluid and non-Newton fluids. So it is obvious a fluid which obey Newton's law of viscosity, which is called as Newton's fluid. Now next is when a body floating in a liquid is displaced slightly, it oscillates about. अगर आपकी बॉडी फ्लोट कर रही है किसी लिक्विड सरफेस पे तो वो स्लाइटली आपका डिस्प्लेस होती है और ऑक्सीलेट करती है अबाउट विच सेंटर. सो वी डिस्कस्ड in our slides, it is oscillate about the meta center. So यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा D. Next is when a body is placed over a liquid, it will sink down if. आपकी बॉडी किस कंडीशन में सिंक डाउन कर जाएगी?
तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि दो फोर्सेस हैं जो कि बैलेंस करके रखते हैं और आपकी बॉडी फ्लोट करती है उन बैलेंस फोर्सेस से. सो दीज फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स ऑफ अ लिक्विड. सो इफ दीज आर बैलेंस तो आपकी बॉडी फ्लोट करेगी, बट अगर आप सिंक कर जाएगी जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा अपवर्ड फोर्स से. सो यहाँ पे आपका सी आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स ऑफ अ लिक्विड. सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. The buoyant force acting on a fluid body passes through. आपका buoyant force जो अप्लाई होता है वो किस पॉइंट से पास करता है? मेटा सेंटर ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी और सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम. तो यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम जितना है उससे आपका पास करता है. डी ऑप्शन. Now our last question is, which fluid does not experience shearing stress during the flow? So Newton's law, Newtonian fluid, pseudoplastic, inviscous and dilate. So inviscous आपका shear stress experience नहीं करेगा because there is no viscosity in this. So C option आपका यहाँ correct होगा. So in our today's lecture we complete the metacentric height, buoyant force and what is metacenter. So thank you for today. Hello everyone, this is Cheshra Bhagwani from Diploma Department. In the last video, we discussed about the principal stresses, what is principal stresses and principal plane. In this video, we discussed about the principal stress, sigma 1, sigma 2, maximum shear stress, tau max 1 and tau max 2, how we calculate this with the help of Mohr circle method. So let's start one by one. First we have to draw Mohr circle diagram. Let's start with the So first we determine the principal stress sigma 1 and sigma 2. So you can see to find these values sigma 1 and sigma 2, the distance between 0 to point sigma 1 sigma 2 you can see in the diagram also. The sigma x जो मैंने डिनोट किया है ओरिजिन से सिग्मा एक्स और 0 से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और सिग्मा 1 मैंने आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको रिप्रेजेंट किया है और सिग्मा 2 आपका नेगेटिव एक्सिस में मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है. एज द रेडियस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर सी. आपकी जो रेडियस है वो हमने सेंटर से आर अज्यूम करी है और सेंटर सी प्रेजेंट किया है एंड द पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस. So you can see from the diagram sigma 1 we can calculate by r minus sigma x plus sigma y by 2. Similarly sigma 2 we can calculate r plus sigma x plus sigma y by 2. So with these two relations we can find sigma 1 and sigma 2. But we need to calculate the value of radius. अगर हमारे पास radius की वैल्यू आ जाती है तो हम easily sigma 1 sigma 2 फाइंड कर सकते हैं from this circle. sigma x sigma y हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो r के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा. एक ट्राइंगल हम यहाँ पे देखेंगे. यू कैन सी इन दिस स्लाइड. यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने आपको एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट किया है जिसमें जो आपका बेस है वो है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2. वहीं आपको एक अनदर सेगमेंट जो आपका परपेंडिकुलर है वो कैलकुलेट करना है और आर आपकी रेडियस है. सो नाउ टू फाइंड द रेडियस आर वी अप्लाइड द पाइथागोरस थ्योरम टू द हाइलाइटेड ट्राइंगल. इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें आपका साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल आर एक सेगमेंट है टॉ एक्स वाई. सिमिलरली आपकी रेडियस आर जो कि हमें फाइंड करनी है और दूसरा सेगमेंट है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई 2. So using Pythagoras theorem we can find the radius value
अंडर रूट दिस कॉम्पोनेंट का होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। वी कैन फाइंड दिस। हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की वैल्यू है, तो हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट रेडियस वैल्यू विच इज 52। यहाँ हमें रेडियस की वैल्यू मिल रही है। नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे रेडियस आ गई है और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, तो हम इजीली आपका सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिग्मा 1 की वैल्यू निकाली प्लस 36 मेगा पास्कल, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस 68 मेगा पास्कल हमने कैलकुलेट। ऑल्सो हमने इसको आपके बोर्ड सर्किट पर ड्रॉ भी किया कर लिया है। ऑरिजिन से आपकी 36 प्लस में सिग्मा 1 और माइनस 68 आपका सिग्मा 2 हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली अब मुझे ये रेडियस की वैल्यू पता है जो मैंने कैलकुलेट कर रखी है विच इज 52। So by using this radius value, we can also calculate this tau xy value. Now next we have to calculate maximum shear stress tau max1 and maximum shear stress tau max2 with the help of Mohr circle. So to calculate the maximum shear stress tau max1 and tau max2, the distance point in the figure we have to find. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेड कलर से मेंशन करा है टॉ मैक्स 1 एंड टॉ मैक्स 2। तो आपका जो रेडियस के बराबर ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं सर्कल की रेडियस डिस्टेंस पर ही आपका टॉ मैक्स ऑरिजिन आपका रिप्रेजेंट किया है, तो प्लस और माइनस में 52 आपका टॉ मैक्स और टॉ मैक्स 2 की वैल्यू हो जाएगी। If you want to calculate phi 1 and phi 2, so now to find the principal direction phi 1 we have to apply the trigonometric ratio to the triangle। आप देख सकते हो आपका एक सेगमेंट है टॉ मैक्स, रेडियस आपकी आर है जो कि यहाँ पे ट्राइंगल में हमें मेंशन कर रखी है, और दूसरा सेगमेंट आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस फाइव बाई। जो ये एंगल आपका मेंटेन हो रखा है, अगर आपका फाइव जो प्रिंसिपल एंगल आपका क्वेश्चन पे जो डायग्राम दे रखा है उसमें अगर 351 है तो आपको सर्कल में उसका 2 टाइम्स लेना होता है। सो यहाँ पे मैंने 251 कैलकुलेट कर लिया। फ्रॉम दिस triangle condition we can easily find the phi 1 value as sin theta is equals to perpendicular upon base। so यहाँ पे हमारा perpendicular है tau xy और base हमारा जो है perpendicular upon hypotenuse। hypotenuse हमारे यहाँ पे radius है tau xy upon r। r की वैल्यू हमें पता है, tau हमने हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन है। by putting all the values कैलकुलेट phi 1, यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा और फिर डिवाइड बाय 2 करके phi 1 की वैल्यू हो जाएगी 11.3 डिग्री। इन दिस डायग्राम आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हिंट भी हमें मेंशन की हुई है। ऑल्सो वी कैन फाइंड phi 2 वैल्यू, क्योंकि आपका जो एक प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल है वो अगर वो phi 1 है तो वो 90 डिग्री पे दोबारा आपका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो phi 2 इज इक्वल्स टू phi 1 प्लस 90, तो आपका 101.3 डिग्री आपका phi 2 एंगल हो गया। Similarly, if you want to calculate phi max is equals to phi 1 plus 45, तो 56.3 आपकी ये वैल्यू हो गई। So using Mohr circle we calculate all the parameters sigma 1 sigma 2 tau max value phi 1 phi 2, we calculate all the parameters with the help of Mohr circle। Now this same numerical we calculate using matrix problem। Same this question we solve with the help of matrix method। matrix method से भी हम इसको solve करके देखेंगे।
So before starting the matrix method, some key points we need to understand, as the principal stresses can also be solved with matrix and determinant. We will name the data interpreted from the figure given according to the matrix and determinants theory. So यहाँ पे हम सबसे पहले आपका 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं विच इज डिटर्मिनेट ए मोड, हमने इसको डिटर्मिनेट नाम दिया। ए बी सी हमारी मैट्रिक्स है और जब हम इसको सॉल्व कर सकते होंगे ये बेसिक मैथ से ए क्रॉस ए इंटू डी एंड सी, यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेट निकाल दिया एंड वी पुट इन आर वेरिएबल्स। हमने यहाँ पे ए को हमने हमारा वेरिएबल माना सिग्मा 1 1 और उसी रो में सिग्मा 1 2 sigma 2 1 and sigma 2. So as this 2x2 matrix, a table with 2 rows and 2 columns is built. Sigma 1 1 हमारा जो है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, sigma 1 2, sigma 2 1 is the second row and first column and sigma 2 2 is the second row and the second column. So हमने यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशंस और कुछ नोटेशंस बात कर ली कि हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन दी मैट्रिक्स मेथड। नाउ मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट से हम वही सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे जो हमने मोड सर्कल में कैलकुलेट की। सो द इक्वेशन इज सेट अप। आई जो है हमारा यहाँ पे है 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें हमने लैम्डा एक कांस्टेंट को यूज करा है जो कि हमें फाइंड करना है। यहाँ पे दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज मल्टीप्लाई बाय दी बाय, हमने उसको बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। द डिफरेंस बिटवीन द टू मैट्रिक्सेस परफॉर्म्ड। यू कैन सी ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू, तो हमारी ए मैट्रिक्स हमने सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 एंड सिग्मा 2 2 माइनस लैम्डा एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आपका अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया। अब जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी कैन इजीली सब्स्टिट्यूट एंड गेट दिस मैट्रिक्स। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दिस इक्वेशन। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमने एक लैम्डा की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाई। यू कैन सी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आप देख सकते हैं लैम्डा की फॉर्म में। जहाँ पे एक्स है वहाँ हम लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस हमें यहाँ पे ये कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। सो आप यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिग्मा 1 1 यहाँ पे सिग्मा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा 2 2 यहाँ पे आपका सिग्मा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिग्मा 1 1 यहाँ पे आपका टॉ एक्स को एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी एंड वी गेट क्लियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा। आप इस लैम्डा इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के, आप सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये मेथड यूज किया है। आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिससे हमने यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यू निकाली है, लैम्डा 1 प्लस 36 एंड लैम्डा 2 माइनस 68। दी अननोन वैल्यूज आर फाउंड। अब यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू आपकी सिग्मा 1 है 36 मेगापास्कल जो कि आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज दी माइनस 68 मेगापास्कल। These are the values of principal stress. We can solve using matrix method. Similarly, हमें टॉमैक्स एंड टॉमैक्स 2 की वैल्यू निकालनी है एंड फाई 1 फाई 2 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग फॉर्मूला मेथड। So by this is the standard formula which we use to calculating the principal stress. So अगर आप मोर मेथड से मोर सर्कल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, और अगर आप मोर मेथड से नहीं करना चाहते तो दीज आर दी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको प्लस साइन लेना होगा और सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है तो माइनस साइन। बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी गेट टू वैल्यूज 36 प्लस एंड माइनस 68।
So from these two method you can easily calculate the same values. बस आपके method different है but आपका value same है. Also tau max we can calculate plus minus sigma 1 minus sigma 2 by 2. Principal direction phi 1 phi 2 also we calculate with the help of this formula. Tan 2 theta phi 1 is equals to 2 tau x y upon sigma x minus sigma y. Similarly this formula also. So आपने देखा कि एक ही न्यूमेरिकल को विद सेम डेटा हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मून सर्कल मेथड, मैट्रिक्स मेथड और सिंपल फॉर्मूले से. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके किस प्लेन पर प्रिंसिपल प्लेन है, कितने एंगल पे बन रहा है और कौन कौन से स्ट्रेसेस इस पे आ रहे हैं. थैंक यू.